اب ہم اپنے درمیان مرکز المعارف ممبئی کے ڈائریکٹر دارالعلوم دیوبند کے سپوت قوم کے درد اور فکر مند عالم دین حضرت مولانا برہان الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو اپنے درمیان پا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت والا نے اپنے مصروف ترین اوقات میں سے ہم کو اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ عزیز طلبہ اور علماء کرام، انگریزی زبان کے حوالے سے ہم لوگوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک وقتی موقع تھا، ایک مختصر سا موقع تھا کہ جس حوالے سے ایک فکر اس کے بارے میں دی گئی تھی، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن ہم نے اس کو پکڑ لیا اور ہم انگریزی زبان سے گویا یوں سمجھیے کہ متوحش ہو گئے، دور ہو گئے، اور اس کو ایک شجر ممنوعہ گویا ہم نے قرار دے دیا۔ انشاءاللہ تعالی ویسے دیکھی جائے تو زبان جو ہے وہ من حیث زبان زبان ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بھانت بھانت کی بولیاں لوگ بولتے ہیں اور رنگ برنگ کے کلر انسانوں کے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کے ایک لوتھڑے میں اگر اردو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اسی لوتھڑے میں عربی اور اسی میں انگلش، پنجابی اور ڈفرنٹ ٹائپ کی لغات اور زبانیں بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ہمارے درمیان مرکز المعارف کے ڈائریکٹر حضرت مولانا برہان الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے۔ ہم حضرت والا کو اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتے ہیں۔ حضرت والا سے ہم اس موضوع پر انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ حضرت والا سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آواز جا رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی ہے، آواز آپ کی آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کے میزبان مولانا ادریس صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے ادارہ کا ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم بیٹھے اور بات چیت کریں۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ آج کا موضوع ہے انگریزی زبان اور دور حاضر میں علماء کرام کے لیے اس کی افادیت۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک گھنٹہ تبادلہ خیال کریں۔ جو سامعین ہیں ان کے لیے یقیناً یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آن لائن سیشنز میں، آن لائن کانفرنسز، میٹنگز ہم لوگ اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ ون وے یعنی ایک طرف سے کمیونیکیشن ہوتا ہے، اب باقی لوگوں کو صرف سننا ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں نہ ہو تو لوگوں کو بورنگ ہوتی ہے، لوگوں کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ کافی وقت ہے۔ ہم اس موضوع پہ میں نے سوچا تھا کہ کچھ سلائڈس وغیرہ پیش کرو، لیکن کیونکہ ابتدائی بات چیت ہے، جی حضرت۔ مجھے لگا کہ سلائڈس کے علاوہ اگر ہم بات چیت کرتے ہیں ڈائریکٹلی تو ممکن ہے کہ وہ بہتر طریقے سے سامعین تک پہنچ سکے اور سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے ہاتھ میں موبائلس ہوتے ہیں اور موبائل کے سلائڈس اور اس کے ٹیکسٹ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سلائڈس آتے ہیں تو لوگ سلائڈس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بات جو کہی جاتی ہے وہ کہیں مس ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے سلائڈس نہیں بنائے، آج ہم اوپن سیشن رکھیں گے۔ میں 3 پوائنٹس کے اوپر بات کروں گا۔ پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا کہ زبان کیا ہے، دوسرا انگریزی کی اہمیت، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ انگریزی کیسے سیکھی جا سکتی ہے۔
جی اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو پہلا پند، زبان کیا ہے؟ ہم سب لوگوں کو زبان کی ایک بنیادی تعریف معلوم ہے، کیونکہ یہاں علماء کرام ہے، تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ علمی طور پر اکیڈمیکلی زبان یا لسان ربط کا ایک ذریعہ ہے۔ اکیڈمیکلی لینگویج از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ مینس آف کمیونیکیشن۔ زبان ربط کا، اتصال کا، کمیونیکیشن کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب اس ذریعہ زبان میں کبھی ہم الفاظ کے ذریعہ سے ہم ادائیگی کرتے ہیں، کبھی اشارات کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور کبھی کسی تیسری چیز کی مدد سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں زبان کے تعریف میں شامل ہیں۔ اب زبان جب مینس آف کمیونیکیشن ہے، ذریعہ ربط ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا انسان سے جو بھی کمیونیکیشن کرنا ہے، جو بھی بات چیت کرنا ہے، اس کے لیے زبان کی ضرورت ہوگی یا اشارات کی ضرورت ہوگی۔ ابھی مان لیجئے کہ یہ ہم زوم میں میٹنگ کر رہے ہیں، اگر ہماری آواز میوٹ ہو جائے تو ہم آپ لوگوں کو بول سکتے ہیں ایسے اشارہ کر کے کہ بھائی اس کو انمیوٹ کیجئے، میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ تو یہاں سے یہ سب بھی زبان میں شامل ہے، یہ اشارات بھی زبان کے تعریف میں شامل ہیں۔ شرعی طور پر زبان کیا ہے؟ شرعی طور پر زبان کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں مولانا ادریس صاحب نے ابھی مجھے میری تعارف کرواتے ہی قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ شرعی طور پر زبان کا حکم، زبان اللہ کا مخلوق ہے، زبان اللہ کے نشانیات میں سے ایک ہے، زبان اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کے مفاد کے لیے۔ زبان ایک آلہ ہے، زبان ہر اس آلہ کے مانند ہے جس کو ہم اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زبان بن حیث الزبان، اس کی کوئی خوبی یا کوئی برائی نہیں ہے سوائے عربی زبان کے، کیونکہ اس سے قرآن حدیث میں اس کے فضیلت ہمیں مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی فضیلت اسلام کے لیے اس کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ کسی زبان کی من حیث الزبان کوئی اہمیت، کوئی فضیلت، کوئی کمی، کوئی برائی نہیں ہے۔ اس زبان کو آپ جیسے استعمال کریں گے، اس استعمال کے مد نظر، اس استعمال کے اعتبار سے اس کا حکم لگے گا۔ آپ وہ ویڈیو اپنا جاری رکھیے گا مولانا ادریس صاحب، کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، اس سے کنفیوژن ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ٹیکنیکل خرابی تو نہیں ہو گئی۔ تو شرعی طور پر یہ ہے کہ زبان ایک آلہ ہے، اور اس آلہ کے استعمال کے اوپر حکم لگے گا۔ اگر آپ نے استعمال صحیح طریقے سے کیا ہے، انسانیت کے مفاد کے لیے کیا ہے، دین کے اشاعت کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، اپنے حلال روزی کمانے کے لیے اگر آپ نے اس زبان کا استعمال کیا ہے تو یہ کار خیر میں شامل ہوگا۔ اگر اسی زبان کو آپ نے غلط چیزوں کو پھیلانے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، یا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، تو وہ زبان چاہے وہ عربی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ زبان کا حاصل کرنا، اس زبان کو سیکھنا گناہ میں شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر بہت سارے یہودی قرآن کریم کے تفسیر اور احادیث اور فقہ کے تمام کتابیں پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ آج تل ابیب میں دنیا کے مشہور ترین اسلامک یونیورسٹی موجود ہے، آج کے ڈیٹ میں موجود ہے، جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے اور بچیاں پڑھتے اور پڑھتی ہے، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے دین کو سیکھتے ہیں۔
جو قرآن حدیث کو سیکھتے ہیں، عربی زبان کو بہترین انداز میں سیکھتے ہیں، تفسیر کو سیکھتے ہیں، فقہ کو سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جو مذاہب کے اختلافات ہے، یعنی ایشیا میں اور یورپ میں اور مسلمانوں کے جو مسلکی اختلافات ہے ان کی باریکیوں کو بھی سیکھتے ہیں وہ، اور فقہی تناظر میں سیکھتے ہیں. تو وہ کوئی قال اللہ و قال رسول پڑھنے کے ثواب یا طلب العلم کے جو ثواب ہے اس ثواب سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس ثواب کے مستحق بھی ہوں گے، کیونکہ ان کی نیت میں، ان کے جڑ میں، ان کی بنیاد میں اسلام کو ڈھانے کا یا اسلام کو نقصان پہنچانے کا مقصد شامل ہے. تو انما الاعمال بالنیات، ان کی نیت جیسے ہے ان کے ساتھ برتاؤ بھی ایسا ہی کیا جائے گا. وہ اگرچہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے، عربی زبان سیکھ رہے، تو صرف عربی زبان سیکھنے کی وجہ سے وہ فضیلت کے مستحق نہیں ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی اگر انگریزی زبان کوئی سیکھتا ہے اور اس کے نیت میں، اس کے مقصد اصلی میں یہ شامل ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے وہ اللہ کے پیغام کو عام کرے گا، اس زبان کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو ان بندوں تک پہنچائے گا جو بندے اس زبان سے واقفیت رکھتے ہیں، اور وہ کوشش کرتا ہے، تو میں ایک عالم دین اور دارالعلوم کے فاضل ہونے کے حیثیت سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں اس کے نیت کے اعتبار سے اور اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ فضیلت کے اور ثواب کے مستحق ہوگا انشاءاللہ. تو شرعی طور پر جو زبان کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آلہ ہے، اور اس کے استعمال کے اوپر دار و مدار ہے. جس طرح سے آپ استعمال کرو گے اس اعتبار سے آپ کے ساتھ شریعت میں حکم صادر ہوگا. انگریزی زبان بھی دنیا کے مختلف زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اور اس کے ساتھ کوئی خوبی یا کوئی برائی نہیں ہے. ہمارے علماء کرام کے اوپر جو بہتان لگتا ہے کہ ہم نے انگریزی کو زبان کی حیثیت سے چھوڑ دیا یا برا بلا کہا، تو یہ غلط ہے. میں اس کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ دارالعلوم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے، دارالعلوم نے اور ہمارے اکابر نے وہ تاریخ میں آج مربوط ہے، اور مرکز المعارف کی طرف سے باقاعدہ شائع ہے کتابیں. اور حضرت مفتی قاری عثمان صاحب نور اللہ مرقدہ کے کتابچے ہے، جو مرکز المعارف کے 25 سالہ جو جلسہ ہوا تھا یعنی سلور جبلی دہلی میں، اس میں وہ صدر تھے، اور صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے کتابچے کو جاری فرمایا تھا. اس میں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اکابر دیوبند اور علماء کرام کے آراء کے ساتھ اس کتابچے میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نہ تو ہم نے زبان کو من حیث الزمان کبھی برا بلا کہا، نہ ہم نے اس کو بیان کرنے کی بات کی، نہ اس کو ہم نے ناپسند فرمایا. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کی، اور کچھ حضرات نے سیکھے، کچھ حضرات نے اس میں کام بھی کیے. تو یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے کہ علماء کرام آزادی کے وقت جب یہاں انگریز کی حکومت تھی، اس وقت بھی ہم نے اس زبان کی مخالفت زبان کی حیثیت سے نہیں کی، ان کی تہذیب کی حیثیت سے کی ہے. ان کی تہذیب ہمارے اندر نہ آ جائے، ان کی تہذیب یا ان کی زبان کی وجہ سے ہماری اپنی زبانیں کمزور نہ پڑ جائے، ہمارے اپنے اقدار کمزور نہ پڑ جائے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے ٹریڈیشنز کو، اپنے اقدار کو، اپنے تہذیب کو، اپنی زبانوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، بچانے کی ضرورت ہے. جس کی وجہ سے تاکید ہم نے ضرور کی ہے کہ ہمیں اپنے لوکل یا اپنے مقامی زبانوں میں تعلیم دلانے کو فوقیت دینی چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی چاہیے. کیونکہ ہماری زبان اردو اس زمانے میں بالکل جوان زبان تھی، اور فارسی اور اردو کے امیزش کیا نام ہے، فارسی اور عربی کے امیزش سے یہ اردو زبان وجود میں آئی تھی. بہت سارے کتابیں علوم اسلامیہ اس میں آلریڈی منتقل ہو چکے تھے. اگر انگریزی کو سب نے اپنا لیا ہوتا تو پھر ہندوستان کے زبان سے ساخت ہی بدل چکا ہوتا. اس لیے ان اکابر نے، ان بزرگوں نے اس وقت جو مناسب تھا وہی مناسب کام کیا. اس زبان کو اتنے زیادہ محبت نہیں دی کہ جو ہے نا وہ ہمارے گھر کا حصہ بن جائے، لیکن ان لوگوں نے اس کے اتنے مخالفت بھی نہیں کی کہ وہ خدا نخواستہ اس کا سیکھنا حرام یا کسی گناہ کا سبب بن جائے. ایسا بالکل نہیں کیا ہے. اور جن لوگوں نے بھی یہ تشہیر کیے ہیں یہ علماء کے مخالفین لوگوں میں سے ہے، اسلام کے دشمن لوگوں میں سے ہے. ان لوگوں نے اس چیز کا پروپیگنڈا کیا، عوام میں اس غلط فہمی کو پھیلایا، اور علماء کو یہ دکھایا کہ علماء ماڈرن ایجوکیشن یا جدید تعلیم سے بہت دور ہے.
उलमा उस चीज़ को पसंद नहीं करते, जैसे ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये रही हमारी पहली बात। दूसरी बात कि अंग्रेजी ज़बान आज के दौर में, दौर हाजिर में अंग्रेजी ज़बान की हैसियत क्या है। देखो, जो हकाइक सामने होते हैं, हकाइक को इनकार करना आपको नापसंद है इसलिए आप इनकार करें, ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है। आप हकाइक को इनकार नहीं कर सकते। जो स्टैटिस्टिक्स है, जो आदाद और शुमार होते हैं, वो आदाद और शुमार होते हैं आपके मुआफिक में है, अच्छी बात है। मुआफिक में नहीं है, मुआफ़क़त में नहीं है, कोई बात नहीं, आपको उसको मानना होता है। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि अंग्रेजी ज़बान आज के ज़माने का सिक्का राइजुल वक्त है। ये ज़बान दुनिया में आज के डेट में 8 बिलियन लोग रहते हैं। 8 बिलियन लोग दुनिया में रहते हैं। इनमें से 2 बिलियन स्पीक इन इंग्लिश। 2 बिलियन लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हर 8 में से 2 लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, उनकी ज़बान अंग्रेजी है। उसी तरह से दुनिया में आज यूनाइटेड नेशन के स्टेट मेंबर्स जो है ना, यानी मेंबर कंट्रीज है, वो 193 है और 2 ऑब्जर्विंग स्टेट है। तो इसका मतलब यह है कि मजमूई तौर पर दुनिया में 195 195 कंट्रीज है। 195 कंट्रीज आज दुनिया में है। इनमें से 67 कंट्रीज का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। 67, अब अंदाजा लगाइए, 67 कंट्रीज का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन ममालिक के ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। इसके बावजूद हमारा सेकंड लैंग्वेज, यानी इन तमाम ममालिक का जिनका मैंने नाम लिया है, इन तमाम ममालिक का सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश ही है। इनके कोर्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है। आज आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो वहाँ हिंदी में अगर एफिडेविट सबमिट किया जाता है तो उसको तर्जमा करना पड़ता है हिंदी में, जबकि हिंदुस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट सबमिट करना होता है वो अंग्रेजी में करना पड़ता है। जो जजमेंट आते हैं वो अंग्रेजी ही में आते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हम लोग अगर जब जाते हैं तो हिंदी, उर्दू या मराठी जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, तो मराठी में अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, छोटा सा एक पर्चा बीएमसी की तरफ से हमारे तंजीम को कोई खत लिखा गया है, उस खत को अगर हम कोर्ट में सबमिट करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट से ये तकाजा होता है कि उसका आप अंग्रेजी में तर्जमा, ऑफिशियल तर्जमा करके बाकायदा सबमिट कीजिए। एडिशनल हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, तर्जमा ऑफिशियली कराना पड़ता है, कोर्ट के लोगों से स्टैम्प लगवाना पड़ता है कि ये तर्जमा सही है। उसके बाद हमें बॉम्बे हाई कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। ना हिंदी चलता है, ना मराठी चलती है, ना उर्दू, तो सवाल ही पैदा नहीं। इसका मतलब हिंदुस्तान के इतने बड़ा मुल्क जहाँ 1.40 बिलियन पीपल रहते हैं, जो जहाँ 100 तकरीबन 40 करोड़ लोग रहते हैं, उस मुल्क का भी सेकंड लैंग्वेज, बल्कि कोर्ट के एतबार से और तिजारत के एतबार से, तिजारत भी आप जब करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो तिजारत के एतबार से यहाँ का भी फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका का भी यही सूरत हाल है। इसका मतलब यह है कि ये हमारी मजबूरी है कि इस जबान को हम सीखे बगैर, इस जबान में काम किए बगैर हम आगे जब काम करना चाहते हैं तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से पूरी दुनिया के तिजारत का लैंग्वेज इंग्लिश है। चाइना वाले भी जो तिजारत करते हैं किसी दूसरे मुल्क के साथ, चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलर मुल्क है, सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, उसकी इकोनॉमी, उसकी माईशत बहुत स्ट्रांग है। उसके बावजूद चाइना को जब अपने बिजनेस एग्रीमेंट करने की जरूरत होती है किसी दूसरे मुल्क के साथ, तो वो चाइनीज में नहीं कर सकता है, वो अंग्रेजी ही में करना पड़ता है उसको। तो बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश है, कम्युनिकेशन मीडिया का लैंग्वेज इंग्लिश है, सारे मीडिया वाले ज्यादातर प्रेफर करते हैं अंग्रेजी में हो। इंटरनेट का लैंग्वेज इंग्लिश है। गूगल गूगल जो है ना आज बहुत बड़ी चीज है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट का लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। आज हम और आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में भी हमें, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, उनको भी जब कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो हम लिखते हैं कि हाँ ठीक है,
HAA हाँ, उसके बाद THIK, उसके बाद HAI लिखते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा जो दूसरा बंदा है अगर वो मदरसे से पढ़ा हुआ नहीं है तो हाँ ठीक है, हम अगर उर्दू में लिखेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी में लिखेंगे तो उसको अंग्रेजी अगरचे नहीं आती है, लेकिन हाँ ठीक है वो पढ़ लेता है, चाहे वो रिक्शा वाला ही क्यों ना हो। हम अपने ड्राइवर को भी जब मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में, बोले भाई कल सुबह 11 बजे ऑफिस की मीटिंग के लिए मुझे जाना है, तुम घर के नीचे गाड़ी लगा देना 10:45 में, तो हम लिखते हैं, यही लिखते हैं कि 10:45 टू 10:45 में गाड़ी लेकर के घर के नीचे आ जाना, ये हम लिखते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट जो होता है वो अंग्रेजी का होता है। तो मेरा ड्राइवर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बावजूद इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है उसी से काम चलता है। उसको ना हिंदी में लिख सकते हैं, ना उसको उर्दू में लिख सकते हैं, ना बंगाली में, ना आसामीज में, ना गुजराती में, ना मराठी में, उसको अंग्रेजी के टेक्स्ट ही चलता है। तो आपका ड्राइवर, आपका आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके स्टाफ के लोग, चाहे कितने ही पढ़े लिखे लोग हो, सबको अंग्रेजी की कुछ ना कुछ जरूरत है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना हो। तो अंग्रेजी इस हद तक जो है ना दुनिया में आम है। अब अंग्रेजी हम उलामा होने की हैसियत से यहाँ नौजवान उलामा कराम है, मैं देख रहा हूँ कि 95 लोग जो है ना इसमें शरीक हो रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी तादाद है। 95 का जूम में रात के 10:15 बजे रहना बहुत बड़ी बात है। आपके लिए, हमारे लिए इस जबान की अहमियत क्या है। कल ही हमारे यहाँ सालाना जलसा हो रहा था, हजरत मौलाना तलहा साहब नक्शबंदी दामत बरकातुम यहाँ तशरीफ लाए थे। जो बात मैं आमतौर पर कहता हूँ उन्होंने कल वो बात अपनी जबान से रिपीट किए। ताइदन जो है ना मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ये मेरा खुद का मौक़िफ़ है कि जो जबान सिक्का राइजुल वक्त हो, दाइन के लिए उस जबान का सीखना जरूरी है। मदऊ के जबान से बात करना ये अल्लाह की फितरत है, इसीलिए अल्लाह ने मुख्तलिफ कौमों में अंबिया कराम भेजा है, इसीलिए अल्लाह ने मुख्तलिफ मकानों में अंबिया कराम भेजा है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अपनी आसमानी किताबें भेजी है वो मुख्तलिफ जबानों में भेजा है। वो अरबी में नहीं भेजा है, कोई हिब्रू में है, कोई अरामिक में है, कोई किसी जबान किसी लैंग्वेज में है। तो अल्लाह ने, अगर अल्लाह के वहाँ सिर्फ अरबी ही जबान होती तो अल्लाह जो है ना अरामिक में या हिब्रू में जो है ना अपनी किताबों का नुज़ूल नहीं फरमाता। तो मदऊ की ज़बान वहाँ उस ज़माने में अरामिक रहा होगा जो तौरात की ज़बान है, या हिब्रू रहा होगा जो इंजिल की ज़बान है। तो मदऊ की ज़बान में अल्लाह ने हज़रत मूसा को, हज़रत ईसा को, हज़रत इब्राहिम की ज़बान क्या है वो आज भी मुहक्कक नहीं है, वो किस ज़बान में ये हज़रात बात करते थे। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं अरामिक जो है, या अरामिक का एक वर्जन दूसरा हुआ करता तो जो आज मफकूद हो गई है। तो अल्लाह ने अपने अंबिया कराम को मदऊइन के ज़बानों में भेजा है, और आज उलमाए कराम वरसतुल अंबिया, आप नबियों के वारिस हो, नबियों के मिशन के वारिस हो, नबियों के काम के वारिस है, तो आपको भी आपके मदऊ के ज़बान से वाकफियत लाजिमी है अगर आप दावत देना चाहते हैं। और ये जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजी अगरचे 67 कंट्रीज के ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन बाद में जो मैंने नाम लिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इन ममालिक का, इनके ऑफिशियल लैंग्वेज अगरचे नहीं है, लेकिन यहाँ भी पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी समझना अपने लिए फख्र महसूस करते हैं। हम भी किसी जगह में जब जाते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसे तो देखने में ठीक है, मुल्ला जी है, आम सा इंसान है, लोगों को कभी कुछ समझ में आता है, कभी नहीं समझ में आता है, लेकिन उसी जगह में हम महसूस करते हैं, कभी कभार जान बुझ करके ये करना पड़ता है। जब वो बोलते हैं कि हाँ आइए, तो हम जब करते हैं यस श्योर, तो वो बंदा मतलब थोड़ा सा महसूस करता है नहीं, मैं जिससे भी मिल रहा हूँ ही इज समवन रेस्पेक्टेबल। हमें उस जबान के जरिए से आपने रेस्पेक्ट करवाना मकसद नहीं होता है, लेकिन हमें अपने काम को या अपने मकसद को आसान बनाने के लिए हमें उस जबान का सहारा लेना पड़ता है। तो अंग्रेजी जबान हर जगह में आज दुनिया में जहाँ भी आप अंग्रेजी में बात करते हो या अंग्रेजी से आप
कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो एडमिन हजरात हैं, कुछ स्क्रीन में हमारे यहाँ ये आ गए हैं, चैट का स्क्रीन आ गया है, उनको आप लोग जो एडमिन है उनको म्यूट जी जी करें। हजरत, और जो आप कंटिन्यू रखें, मैं देखता हूँ। हाँ, पहले जैसे स्क्रीन था ऐसे रखिए। हाँ, मेरी बात कंप्लीट होने से मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, उसके बाद हम सवाल जवाब भी लेंगे इंशाल्लाह। मेरे दूसरे पॉइंट में चल रहा है तो हम लोग खत्म कर दें। सॉरी, दरमियान में डिस्टर्बेंस हो गया, ये टेक्निकल चीजें होती रहती है। तो अंग्रेजी जो है ना, हम लोगों को हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा जरूरत है ना। आप टिकट बनाने जाते हैं, रेलवे टिकट बनाने जाते हैं, तो फॉर्म फिल अप करने के लिए एक तरफ हिंदी है, एक तरफ अंग्रेजी है, कोई तीसरी जबान तो होती नहीं है। अगर आपके रेलवे टिकट को फॉर्म फिल करना है, आप पढ़े लिखे आलिम दीन हैं, हम अपने बायोडाटा में लिखते हैं कि ग्रेजुएट है, इक्विवेलेंट टू बीए है। आप एक ग्रेजुएट इंसान अगर अपना फॉर्म भी फिलअप ना कर पाए, बैंक में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, अगर आप अपने इमिग्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हो, आप अपने आधार कार्ड को ढंग से पढ़ नहीं पाते हो, आप अपने वोटिंग आईडी कार्ड के स्पेलिंग मिस्टेक्स को ढंग से पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो फिर हकीकत में हमारा पढ़े लिखे होने पर शक पैदा हो जाएगा लोगों को। लोग मशकूक हो जाएंगे कि हम पढ़े लिखे है भी कि नहीं है। अगरचे हमें दूसरी जबानें बहुत अच्छी तरह से आती है और हम हर तारीख में पढ़े लिखे हैं, हम उर्दू जानते हैं, हम फारसी जानते हैं, हम अरबी जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जबानें जिन लोगों के साथ हमारा रोज़मर्रा कामकाज होता है उन लोगों को वो जबानें नहीं आती है। और हमें जो जबान आती है, क्या नाम है, उनको जो जबान आती है वो हमें नहीं आती है। अब वो स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं, वो ऑफिशियल लेवल में होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे बारे में राय कायम करते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है। तो इसलिए अंग्रेजी तो आपके बुनियादी ज़रूरियात में से शामिल है, आपके दीनी ज़रूरियात में से शामिल है, आपके तिजारती ज़रूरियात में से शामिल है। अगर आप बड़े पैमाने में काम कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी आना ज़रूरी है, वरना आप हर जगह में परेशानी उठाएंगे, आपको तकलीफें होंगे। अगर आपने इमामत भी करनी है, अगर आपने एक मदरसे में पढ़ाना भी है, तो आपके ट्रस्टी हजरात, आपके जिम्मेदारान मस्जिद के लोग जो होंगे वो मदरसे से पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। वो हिसाब किताब, जुमा में चंदे के हिसाब किताब भी वो ज्यादातर लोग अंग्रेजी लेटर्स में या अंग्रेजी हरूफ में लिखेंगे। तो उसको अगर इमाम साहब होने की हैसियत से, जिम्मेदार होने की हैसियत से देखना भी है, तो आपको वो जबान या कम से कम बुनियादी तौर पर जो है ना, जो मालूमात है वो आपको आनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट रहा कि अंग्रेजी की अहमियत क्या है। तीसरा पॉइंट जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि अंग्रेजी कैसे सीखे, अंग्रेजी कैसे सीखे जा सकते हैं। इसके ताल्लुक से मुख्तसरन अर्ज ये है कि देखिए, हम लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मरकजुल मारिफ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया दुनिया का कहना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का तो कम से कम यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि मुनफरिद इदारा है। और जहाँ 1994 से यह सिलसिला हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब दामद बरकातहू के जरिए से शुरू हुआ, और हम लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। और आज इस इदारे के अफराद, चाहे वो दारुल में उस्ताद हो, दारुल वक़्फ़ में या वहाँ मेन दारुल में, और यहाँ मरकजुल मारिफ मुंबई में भी हमारे लोग इस लेवल में पहुंच चुके हैं कि जहां अंग्रेजी जबान कैसे सिखाई जाए उसके ऊपर किताबें लिखे, यानी अंग्रेजी सर्फ और नहव, अंग्रेजी ग्रामर के ऊपर किताबें लिख रहे हैं, और मशहूर किताबें आ चुकी है। और एक नहीं, दो नहीं है, कई सारी, यानी तकरीबन 8 किताबें आ चुकी है जो अंग्रेजी जबान सीखने के ताल्लुक से है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उलमाए कराम जिनके ऊपर ये बुहतान हुआ करता था कि वो अंग्रेजी नहीं जानते या अंग्रेजी से भागते हैं, वो आज अंग्रेजी कैसे सीखा जाए, अंग्रेजी के ग्रामर के ऊपर और अंग्रेजी के टेक्स्ट बुक के तौर पर जो है ना किताबें उम्मत को पेश कर रहे हैं। तो उस लेवल में लोग आ चुके हैं और ऑलरेडी किताबें चल रही है मार्केट में। मेरी भी खुद एक से ज्यादा किताबें हैं अंग्रेजी जबान के ताल्लुक से, जो तकरीबन 25 साल के तजर्बात की बुनियाद पर हम लोगों ने लिखे। तो मैं ये कह रहा हूँ आप हजरात को कि अंग्रेजी जबान दुनिया के आसान तरीन जबानों में से एक है। मुफ्ती साहब का चेहरा मैं देखना चाहता था, आप जब वहाँ मुस्कुराते हैं तो लगता है कि हाँ मैं किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। यहाँ वो स्क्रीन ब्लैक हो गया, तो वो चेहरा लाइए, आपका चेहरा देख देख करके गोया कि आप ही से बात कर रहा हूँ।
अंग्रेजी ज़बान बहुत आसान है, आसान तरीन ज़बान। वजह क्या है, एक तो है कि इसके हरूफ बहुत कम है, सिर्फ 26 लेटर्स के ज़बान है। उसमें 5 वावल्स है, यानी 5 हरूफ इल्लत है, और 19 कॉन्सोनेंट्स है, और 2 सेमी वावल्स है। तो ये क्या नाम है, 2 + 5 + 19 12 26, ये सिर्फ 26 लेटर्स की ज़बान है। उसके बाद उर्दू में हम लोग जब लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हमें लिखना है मुझको, तो मीम, जा, जीम, हा, काफ, वाव एक साथ हम कर देते हैं मुझको। हिंदी में भी ये होता है, बंगाली में भी ये है, अरबी में भी ये है कि हम लेटर्स को यानी हरूफ को मिला करके अल्फाज बनाते हैं। अंग्रेजी की ये खूबी है कि उस जबान में लेटर्स मिलते नहीं है, एक दूसरे के साथ टच नहीं होते। लेटर्स ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लेटर्स होंगे या स्मॉल लेटर्स होंगे, कर्सिव होंगे, नॉन कर्सिव होंगे। तो जो कर्सिव या नॉन कर्सिव जो घुमा करके लिखाने वाला उसको कर्सिव बोलते हैं, और जो कंप्यूटर टाइप होते हैं, जो हम लोग व्हाट्सएप में टाइप करते हैं या मैसेंजर में टाइप करते हैं, वो नॉन कर्सिव है, कैपिटल और स्मॉल का होता है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होता है कि भाई जुमले के फर्स्ट लेटर को आपको बहरहाल कैपिटल में लिखना है, और अगर नाउन है, किताब कुछ चीज का, जगह का नाम है, ये है वो है, कुछ चीजें हैं वहाँ सिर्फ कैपिटल में लिखना होता है। उसके अलावा कोई खास रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस लेटर्स जो है ना एक साथ जमा नहीं होते हैं, लेटर्स अपने जगह में अलग अलग रहते हैं। आपको लिखना है एम, यू, जा, जे, एच, के, ओ, मुझको, वही अलग अलग रहेंगे। और आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल डॉट है, DAUGHTER। तो ये लेटर्स भी जो है ना बहुत ज्यादा एक साथ मिलते नहीं है, और लेटर्स के अपने अलग साथ जो है ना बने रहते हैं। जब कर्सिव में भी लिखते हैं तब भी जो है ना कर्सिव में आने के बाद ही थोड़ा बहुत मिलते हैं जब हम हाथ से लिखते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हुआ कि हम मोबाइल में लिखते हैं। मेरे जैसा बंदा साल में 2 जुमला भी नहीं लिखता है, हम लोग मोबाइल में टाइप करते हैं, सिर्फ सिग्नेचर के लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं। तो आइंदा आने वाले जमानों में जो है ना हाथ से लिखने वाला जमाना खत्म हो जाएगा। जब हाथ से लिखने वाला मामला खत्म हो जाएगा, तो उस वक्त जो है ना ये कर्सिव राइटिंग जो अंग्रेजी का मिलने वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे। कर्सिव राइटिंग में मिलते हैं, बाकी चीज़ों में नहीं मिलते। तो एक तो है कि ये 26 लेटर्स का है, और दूसरा ये है कि मिलते कम है। तीसरा ये है कि उस जबान के सर्फ न हो, यानी ग्रामर भी इतना मुश्किल नहीं है जैसे अरबी उर्दू के है। मिसाल के तौर पर मैं आसाम का इंसान हूँ, तो आखिर में अगर या आए तो हम लोग आमतौर पर समझते हैं कि भाई वो मुअन्नस है, और अगर आखिरी में ता है तो वो मुअन्नस है। लेकिन आप जो है ना वक्त को मुजक्कर बोलते हो और हाथी को भी मुजक्कर बोलते हो। अब हम कहाँ जाए, अब हाथी जा रही बोलते हैं या तो हम अगर बोलेंगे हाथी जा रही है तो आप लोग हंसोगे। हाथी जा नहीं रही है, हाथी जा रहा है। अब ये हाथी या होने के बावजूद भी बोले नहीं, ये तो जबान के जो उर्फ में आम है उस हिसाब से जो है ना हाथी जा ही रहा है साहब। आपके ग्रामर से, यानी हम लोगों ने तो उर्दू का कायदा पढ़ करके उर्दू सीखे है, तो वो कायदा में आता नहीं है वक्ता और हाथी। इस तरह की बहुत सारी मिसालें। तो अंग्रेजी में ये मुजक्कर मुअन्नस का भी कोई इशू नहीं है, तस्कीर तानीस का कोई मसला नहीं है। उसी तरह से जमा का भी जो है ना वो सिंगुलर है या जमा है, या तो सिंगुलर होगा या जमा होगा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। या अरबी में जो है ना 2 का और अलग मसला है, अंग्रेजी में 2 का कोई मसला नहीं है, 2 ही जमा है। इसी तरह से आपके यू जो है ना वो हमेशा यू ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बहुत बड़ा हो। हम जो है ना तू, तुम और आप, ये आपकी उर्दू में है। अरबी में भी जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेजी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यू 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 ही है। वो तू भी यू है, तुम भी यू है, आप भी यू। तो ये आसानियां इस जबान के साथ है, जिसकी वजह से हमने जब उसको पूरी तरह से कैलकुलेट किया, सारे हिसाब किताब लगाया, तो हमने पाया कि जबानों में सबसे आसान तरीन जबान जो है ना वो अंग्रेजी है। उसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा खासतौर पर उलमाए कराम जो मदारिस से पढ़ करके आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब तक ज़्यादातर मदारिस के लोगों को पढ़ाया, अगरचे स्कूल कॉलेजेस के लोगों को भी पढ़ाते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं हम लोगों के तर्ज को पा करके और हमारे अंदाज पा करके। जो ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर डिग्री होल्डर्स होते हैं, उनको भी हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं कि उनको बड़ी आसानी से उन चीज़ों में जो है ना कमांड हासिल हो जाती है, जो आम तौर पर उन लोगों ने तब तक नहीं कर पाए थे।
تو अंग्रेजी जबान है तो बहुत आसान है, उसका जब आसान है तो उसका सीखना भी बहुत आसान है। जबान सीखने के लिए, जबान सीखने के जो लेवल लगता है तो उस वक्त लगता है जब आप किसी जबान को पढ़ लेते हो, रीड कर लेते हो, समझना जरूरी नहीं है, जब रीड कर लेते हो, जब आप उस जबान में कोई चीज आपको कहा जाए उसको आप लिखने के ऊपर कादिर होते हो। जरूरी नहीं है कि सारे स्पेलिंग दुरुस्त ही हो, और जब आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी तारुफ जो है ना उस जबान में करवा सकते हो। इस हद तक अगर आप जबान पर कुदरत रखते हो तो उस जबान के बारे में आप कह सकते हो कि आई कैन रीड राइट एंड स्पीक, यानी उस जबान में मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ। तो ये लेवल होता है जब आप अपने बायोडाटा में या अपने रिज्यूमे में लिखते हैं कि आई कैन रीड राइट एंड स्पीक उस जबान में। तो इस लेवल में अगर आपने सीख लिया तो आप ये लिख सकते हो। उसके आगे, बहुत आगे तक जितने दूर आप जा सकते हो आप जाइए, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई इंतहा नहीं है। जबान के सीखने का या जबान में एक्सपर्टाइज हासिल करने का कोई इंतहा नहीं है। मैं अंग्रेजी का पोएट हो, शायर हो, मैंने 100 से ज्यादा जो है ना नज़में लिखी है अंग्रेजी में। मैं एक एडिटर हूँ, मैं अखबारात में कॉलम लिखता हूँ। तो हमारी अंग्रेजी या हमारे जैसे अंग्रेजी लिखने के लिए ये आप सोचोगे कि नहीं 2 महीने में, 3 महीने में, साल में, 2 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए वक्त देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आप आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल में आओगे। लेकिन मरकजुल मारिफ 3 महीने में भी अंग्रेजी लोगों को सिखा देता है। और मेरी ही किताब है शॉर्ट टर्म इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो 30 असबाक पे मुश्तमिल है। उन 30 असबाक के जरिए हम दावा भी करते हैं और वो दावा हम बजा करते हैं कि हम आपको अंग्रेजी रीड राइट एंड स्पीक, यानी रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग के लेवल तक हम अंग्रेजी सिखा देते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों ने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन मोड में भी उस किताब के जरिए से या उस प्रोसेस के जरिए से सीख लिया है। यानी 2 घंटा, हफ्ते में 3 दिन, 90 दिनों में उस 30 असबाक के जरिए लोगों ने अंग्रेजी सीखा है, सैकड़ों लोगों ने सीखा है। तो आप इसके जरिए से या इस तरह के बहुत सारे और भी कोर्सेस है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आज मरकजुल मारिफ के फजाला पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों में वो कोर्सेस चला रहे हैं। उनके जरिए से भी आप सीख सकते हैं और आप खुद से पढ़ करके भी सीख सकते हैं। ये जबान इतना आसान है कि अगर कोई स्मार्ट इंसान हो, बहुत होशियार किस्म का मेहनती इंसान हो, तो ये जो किताबें हमारे लोगों ने लिखा है, वहाँ देवबंद से मौलाना अब्दुल हामिद साहब के मौलाना ग्रामर है, और मुफ्ती सज्जाद से अंग्रेजी कैसे सीखे, या उस तरह से वहाँ अलमहाद अल आलिया अल इस्लामी हैदराबाद से मौलाना नाजिर वगैरह के क्या नाम है, हाउ टू लर्न इंग्लिश, या मरकजुल मारिफ की जो किताबें हैं, इस तरह की किताबें भी और भी कोई अगर पसंद आता है आपको, वो किताब लेकर के सही अगर मेहनती इंसान हो तो कुछ वक्त दे करके वो इंशाल्लाह दे सकते। नहीं, किताबों को पीडीएफ में क्यों देना है, ये सारे तिजारत की चीजें हैं और सब चीज मुफ्त में ही क्यों चाहते हैं। कुछ चीजें खरीद करके जान लगाइए, मान लगाइए, तभी जाकर समझ में आता है कि आप शौकीन है। हम अपने किताबों को ना पीडीएफ में देते हैं और ना उसको कभी किसी को बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं देना है। कोई देना भी चाहे तो उसको हम मना करते हैं कि पीडीएफ में नहीं देना, वो पढ़ते उठते है नहीं, उनको जाया कर देते हैं, आप सिर्फ शेयर करते रहते हैं। खरीद करके ले जाइए और जाकर के हार्ड कॉपी से आप पढ़ेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, मिल बता देंगे आपको इंशाल्लाह, आखिर में पूछिएगा वो। अभी मेरी बात खत्म होने दीजिए, हम 10 मिनट आप लोगों के लिए रखेंगे ताकि सारे सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ आपके स्क्रीन को। तो ये किताबें जो है ना आपके पास है। आखिरी बात मेरी ये है कि मैंने ये कहा कि अंग्रेजी आसान तरीन जबान है, आप उसको सीख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए बहुत जहानत की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़हीन लोग हैं तो आसानी से सीख लेंगे, कम ज़हीन लोग हैं तो वो मेहनत करके सीख पाएंगे। लेकिन मेहनत करके आप सीख पाओगे, चाहे आप आलिम बन चुके हो, चाहे आप बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हो, क्योंकि हम लोगों से बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले कई डजन लोगों ने जो है ना अंग्रेजी सीखे, जो अफ्रीका में आज हदीस पढ़ा रहे हैं, या बड़े बड़े खतीब हैं बड़े बड़े मसाजिद के, जिन लोगों ने पहले अंग्रेजी सीख नहीं पाए थे, आज 60-65 साल के एज में जाकर उन लोगों ने अंग्रेजी सीखे और हमें दुआएं दी है माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि अगर आप कम उम्र हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख सकते हो। और अगर उम्र ज्यादा भी हो चुकी तब भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो। अंग्रेजी सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है।
उस्ताद साहब किताब का नाम दो वो बता देंगे। अच्छा ठीक है, वो लिख करके दे देंगे, आप लोग लेंगे। तो चौथी बात जो आखिरी है वो ये है कि देखिए, अंग्रेजी तो आपको सीखनी पड़ेगी। आपके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप उस चीज को माने या ना माने, आपको अगर रेस्पेक्टेबल यानी इज्जतदार जिंदगी गुजारनी है तो आपको थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। और जब आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आएगी तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन में, हमारे ही बुजुर्गों में से, मैं नहीं नहीं नाम लूंगा, हमारे ही बुजुर्गों में से जिनको हम इज्जत करते हैं, बड़े हैं, उनके पास है आज भी, जब मोबाइल में कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप वो खुद चलाते हैं और टेक्सटिंग वगैरह भी इनेबल है। यानी जो उस जमाने में मोबाइल में एसएमएस आता था, आजकल तो एसएमएस कम आता है, व्हाट्सएप ज्यादा आता है। तो जब भी एसएमएस आता था, कोई अच्छे खासे बड़े बड़े एसएमएस आते थे, तो वो हम कहीं मिलते थे, मोबाइल दे करके बोलते थे कि उसको जरा पढ़ करके समझा दीजिए। भाई ठीक है, पढ़ करके समझा दिया कि इन्होंने ये लिखा है, आप जवाब लिख दीजिए। क्या वाला जवाब लिखो? बोले ये लिखो। तो हमने जवाब लिख दिया। अब हम जब कभी होते नहीं है उनके पास या उनके साथ, तो वो जो है ना, उनको 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 किसी ना किसी को वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद उनसे वहां से जवाब जाता है, समझते हैं, उसके बाद वो जवाब, वो आज भी है, जिंदा है माशाल्लाह। तो और हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, रहनुमा हैं। तो इस मजबूरी से बचने के लिए, ये हजरात तो बहुत बड़े हैं भाई, उनके जमाने में इतनी आसानियां थी नहीं, तो सीख नहीं पाए होंगे। ठीक है, हम उनको इस कमी के लिए जो है ना, खुदा ना खास्ता, हम उनको कम नहीं समझते। जो जैसे माहौल में थे, जो मौके थे, उस मौके से फायदा उठाया। अभी उनके एज या उसके काम का, उनके काम काज के एतबार से वो तैयार नहीं है कि उस चीज को दोबारा पढ़े। लेकिन आप लोग जो यहाँ सुन रहे हो, तकरीबन 90 लोग, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी की भी एज जो है ना अबव 40 होगी, यानी 40+ होंगे। तो आप लोगों को, सब लोगों को ये तय कर लेना है कि भाई हमें बुनियादी अंग्रेजी सीख लेनी है, चाहे जैसे भी हो। जरूरी नहीं है कि आप मरकजुल मारिफ में दाखिला लो, मरकजुल मारिफ में दाखिला तो अभी खत्म हो गया इस साल का। और जरूरी नहीं है कि आप हम लोगों से किताब खरीद करके पढ़े, आप कहीं से भी किताब खरीदे, लेकिन किताबें हैं, उन किताबों को ले करके। और ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं, हमारे लोग ही चला रहे हैं, आज के दौर में बहुत सारे लोग हैं चला रहे हैं। उन हजरात से जो है ना, आप लोग अंग्रेजी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, किताबें ले लीजिए, और बाकायदा जो असाइनमेंट वो लोग देते हैं, उस असाइनमेंट को ले करके, कोई भी चीज़ सीखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आप चाहोगे नहीं, मैं किताब खरीद लिया और हमने जो है ना कोर्स ज्वाइन कर लिया तो हमें जबान आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, जो असाइनमेंट दिया जाता है उस असाइनमेंट को पूरा करना पड़ता है। पूरा करने के बाद मान लीजिए कि मैं उस्ताद हूँ, तो मैं उस जबान के एतबार से डॉक्टर हूँ। अब डॉक्टर आपको जब प्रिस्क्राइब करता है कि भाई साहब आपके नब्ज हमने देखा है और हमने डायग्नोज किया है, आपके ये परेशानियां हैं, अब मैंने दवाई लिख करके दिया है कि ये दवाई आप ले लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, और इसको आप ऐसे ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा। खाने के बाद 2 टैबलेट लेना है, खाने से पहले 2 टैबलेट लेना है, और इन इन चीज़ों से आप बचे रहिएगा, और इन इन चीज़ों को आप ज्यादा कीजिएगा। ये हिदायत डॉक्टर आमतौर पर देता है। उसके बाद जाकर के मरीज उन हिदायत के ऊपर अमल करता है, दवा खरीदता है, दवा लेता है, और उसके बाद अल्लाह ताला उसको शिफा देता है। पढ़ाने में भी तमाम जगहों में, चाहे वो मदरसे में हो, चाहे वो अंग्रेजी जबान हो, चाहे वो अरबी जबान हो, किसी भी जबान में हो, उस्ताद आपको डायग्नोस करके बताएगा कि आपको टिप्स देगा कि ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। आप उनको पढ़िए, उनको होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद जो है ना, जो भी वो बोलता है वो कर लीजिए, और उसके बाद देखिएगा आपको इंशाल्लाह शिफा होगा, यानी आपको जबान आ जाएगी। तो ये आप लोगों को करना है। हमारा टाइम जो है ना 46 मिनट हो गया है। मैंने जो बातें आप लोगों को कहनी थी वो हमने कह दी है। आज के लिए मैं समझता हूँ इतनी बातें काफ़ी है। अब कुछ हजरात ने कहा था, यहाँ पूछा था सवालात, मैं उनको पहले बता देता, उसके बाद आप हजरात सवाल पूछना चाहेंगे तो हम सवाल भी लेंगे। किताबें कहाँ से मिलेंगी? मरकजुल मारिफ का एक वेबसाइट है, मरकज मीडिया.com। मरकजमीडिया.com, मैं चैट में उसको लिख देता हूँ। इस वेबसाइट में वो किताबें अवेलेबल है। ये हमारा पब्लिशिंग हाउस है, मरकज
इसमें जो है ना किताबें कुछ मिल जाएंगी आप लोगों को, जो मरकज की पब्लिश करता किताबें। अभी किसी साहब ने पूछा कि वो किताबें कहाँ मिलेंगी, तो इसमें मेरी किताबें हैं, एक एडवांस किताब है और एक बेसिक किताब है, वो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगी। उसी तरह से इसमें कुछ और किताबें भी, मौलाना ग्रामर जो देवबंद के उस्ताद ने लिखा है, वो भी मिल जाएंगे। और बाकी मौलाना मुफ्ती सज्जाद साहब की या मौलाना जमशेद आदिल की, जो वक्त दारुल के असातिज़ा हैं, उन लोगों की जो अंग्रेजी की किताबें हैं, वो आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएंगे। कहाँ के कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज जो है ना, अभी रमज़ान सामने है, इसलिए मरकजुल मारिफ की तरफ से ऑनलाइन कोर्स जो हमारा 3 महीने का एक कोर्स है जो बेसिक है, और एक 4.5 महीने का है जो एडवांस लेवल का है। तो ये सारे कोर्सेज जो है ना, आइंदा शव्वाल के 15 तारीख के बाद ही हम मशवरा करेंगे कि कब शुरू करना। हम साल में एक ही मरतबा चलाते हैं, कब शुरू करना है, तो हम ऑनलाइन कोर्सेज जो है ना 15 शव्वाल के बाद मशवरा करके ही हम ऐलान निकालते हैं, उस ऐलान के बाद एडमिशन लेते हैं। उसके फीस होता है, यानी बेसिक जो कोर्स है बुनियादी, उसका 3,000 रुपया फीस होता है किताब समेत, और जो एडवांस है उसका 5,000 रुपया फीस होता है एडवांस समेत। तो वो रमज़ान के बाद ही समझ में आएगा आप हजरात को कि कब शुरू हो रहा है। अगर फिलहाल किसी को कोर्स करनी है, अंग्रेजी के बुनियादी कोर्स या एडवांस कोर्स, तो मरकजुल मारिफ से ही पढ़े हुए हैं डॉक्टर हिफ्जुर्रहमान कासमी, जो दिल्ली में रहते हैं, और ईगल एकेडमी के नाम से वो इदारा चलाते हैं। उस इदारे में आप, हाँ ये सही है, उस इदारे में आप दाखिला ले सकते हैं। वहाँ हमेशा मुख्तलिफ बैचेस चलते हैं, और उनके भी पढ़ाने का अंदाज मरकज से पढ़े हुए हैं। और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से वो PhD है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और अच्छे तजर्बाकार उस्ताद है। तो अगर आपको जल्दी करनी है तो उनके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा भी मरकज से पढ़े हुए आप किसी के साथ एडमिशन लें तो आप मालूम कर लें कि आप कहाँ से पढ़े हुए हैं। मरकज से जो पढ़े हुए होंगे हम उनको रिकमेंड करेंगे कि आप मरकज से पढ़े हुए किसी उस्ताद के जरिए से आप मेरी किताब से जो है ना अंग्रेजी सीख लें, क्योंकि वो लोग भी इसी किताब को ही खरीदते हैं, उसी किताब से ही अंग्रेजी सिखाते हैं। तो चूंकि मैं उस किताब को लिख रहा हूँ तो मुझे उस किताब के बारे में ज़्यादा मालूमात है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं इस किताब का नाम ले रहा हूँ। बाकी मुमकिन है और भी आप हजरात देख लें, अगर समझ में आ जाए तो उनमें से जो है ना आप कुछ सीख लें। बहुत बहुत शुक्रिया उन्नीस भाई। अब हम अपने यहाँ पर मीटिंग को क्लोज करते हैं क्योंकि 11 बज चुके हैं। हजरत भी थके होंगे, कामों में रहते हैं लोग। और बस हम वैसे 1 घंटा ही लेते हैं, लेकिन मेरी चूंकि दिलचस्पी है अंग्रेजी जुबान से, इस वजह से कि इस वक्त जुबान अगर हम उलमा के पास है तो मैं समझता हूँ कि दीनी कामों में वो बहुत मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब जो इंग्लैंड में इस वक्त क़याम पजीर हैं और फलाह दारैन में हमने उनसे अंग्रेजी पढ़ी है, तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते थे, तवज्जो बहुत दिलाते थे, लेकिन हमारा माइंड सेट उस वक्त ठीक नहीं था। मैं बताऊंगा ये, क्योंकि फलाह दारैन में 9 साल तक अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। मैंने फलाह दारैन में 9 साल तक अंग्रेजी पढ़ी, फिर 2 साल हैदराबाद अल माहदुल आलिया अल इस्लामी में पढ़ी। लेकिन चूंकि माइंडसेट नहीं था, तो हमें जो फायदा उस वक्त होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फिर जब तदरीस के लिए बैठे तो फॉरेन कंट्रीज के तलबा मेरे पास आए, तो मुझे मजबूरी में उनसे चूंकि कम्युनिकेट करना होता था, तो मैं टुकड़े टुकड़ों में वैसे ही अल्फाज बोला करता था, और बोल बोल के मैंने फिर अंग्रेजी सीखी। और फिर जरूरत हुई कि कुछ ऐसी लिटरेचर में पढूं, खासकर साइकोलॉजी पर जो किताबें लिखी गई, तो मेरी मजबूरी हुई कि मैं उसको फिर पढूं। तो मैंने उसको पढ़ पढ़ के अंग्रेजी पढ़ना और समझना सीखा। वक्त तो चूंकि तालिब इल्म के जमाने में जो वक्त देना चाहिए था वो नहीं दिया, लेकिन चूंकि बाद में दिया, तो मुझे ये ख्याल हुआ कि हम तलबा का, उलमा का, नए फुजला का अगर माइंडसेट पहले ठीक होगा, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त देंगे, वो मेहनत करेंगे। और मेरा जैसे हजरत ने बताया कि भाई अंग्रेजी जुबान आसान है, हम मुश्किल समझते हैं, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो हजरत की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि यकीनन वो आसान जुबान है। अगर हम वक्त दें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत मौके हैं काम के, दीनी कामों के, दुनियावी उमूर में हमारी जरूरियात की तकमील के। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यकीनन इस सिलसिले में मरकजुल मारिफ से हमें रुजू करना चाहिए। एक खालिस दीनी इदारा है उलमा के लिए। वो एक बेहतरीन मौका फराहम करने वाली जगह है। तो इसी गरज से हमने चाहा कि किसी
ہم نے ہر پلیٹ فارم کی ایسی شخصیت کو لیا جو اس لائن کی منتہی ہو، ایسی شخصیت ہو، ایسا فرد ہو، ایسا ادارہ ہو کہ جب وہ وہاں سے بولے بتائے تو یقیناً وہ اس کا پورا حل ہو۔ تو اس لیے ہم نے حضرت مولانا برہان الدین صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ، جو کہ انتہائی مصروف ترین ان کے اوقات ہوتے ہیں، ان کی مستقل مشغولیات ہوتی ہیں، لیکن ہم نے درخواست کی، یقیناً میں سچ کہوں گا عزیزو، پھر آپ سے کہتا ہوں آپ قدر کرو، جتنے بھی محاضرات ہو رہے ہیں، جن شخصیات کے ہو رہے ہیں، ان شخصیات کے اوقات بہت قیمتی ہیں، یہ ان کی محبت کی بات ہے ہم لوگوں کے ساتھ، یہ ان کے دل میں پیدا ہونے والے درد کا اثر ہے کہ یہ ہمیں اوقات دیتے ہیں اور الحمدللہ وقت پر آن لائن آ جاتے ہیں، تھکے ہیں، ہارے ہیں، کیسی بھی حالت میں ہیں، لیکن آتے ہیں، اپنی پوری بات رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کی باتوں کو پھر سنتے ہیں، سوالات جوابات دیتے ہیں۔ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ انگریزی کا سیشن سب سے طویل سیشن ہے اب تک کے سیشنوں میں۔ حضرت اب تک کے سیشن جتنے بھی ہوئے اس میں جتنا وقت انگریزی کے لیے ملا، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت ہم نے 11/5 کا ابھی تک کوئی سیشن نہیں کیا، ہم فوراً ختم کر دیتے تھے، لیکن چونکہ یہ ضروری ہے اس لیے میں، حالانکہ دن بھر تھکا ہوں، آج پروگرام میں گیا تھا، صبح سے گیا تھا اور میں بس پروگرام شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے ہی پہنچا ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ ضرورت ہے، علماء کو اس طرف آنا چاہیے، اپنے نظریے کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا چاہیے۔ حضرت نے وہ جو مولانا منصور پوری رحمت اللہ علیہ، سلمان صاحب منصور پوری، مولانا عثمان قاری صاحب عثمان صاحب، منصور، قاری عثمان، قاری عثمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی جس کتاب کا حوالہ دیا وہ حاصل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے، مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے تو پہاڑ کو کھودنا بھی آسان ہے، مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے تو کسی مشکل کام کو کر گزرنا بھی آسان ہے، مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے تو دنیا میں رہ کر، زمین پر سے اڑ کر، چاند سے، آسمان سے ستارے کا توڑنا بھی آسان ہے۔ مائنڈ سیٹ ٹھیک کیجئے، محنت کیجئے، لگن کے ساتھ لگیے، اپنے آپ پر محنت کیجئے، کچھ بن کر کے بتائیے، اپنے لیے بتائیے، قوم و ملت کے لیے بتائیے، اپنے والدین کے لیے بتائیے، دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، مستقبل آپ کا روشن ہونا چاہتا ہے، بس آپ اٹھیے، تیاری کیجئے، محنت کیجئے اور کچھ کر کے بتائیے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا، پھر میں شکریہ ادا کروں گا حضرت مولانا برہان الدین صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ کا کہ اپنا قیمتی وقت ہم کو عنایت فرمایا، اہم اور قیمتی پوائنٹس پر گفتگو کی، سارے امور جن کی ضرورت تھی آپ نے تفصیل سے بتایا، اتنا طویل وقت ہمارے درمیان بیٹھے۔ اب ہم اپنی میٹنگ کو یہاں پر 19 بھائی ختم